Hello everyone. A very good evening to all of you. I am Dr. Priyanka Sachdev here and today I am here to continue my pharmacology series. In pharmacology, yesterday we have already started general pharmacology, I guess. You all were there, yes or no? So you may have watched the recording or you may have watched it live. We have already started general pharmacology chapter 1, that is pharmacokinetics. So let me continue that. In this session, I will be teaching you or discussing the effect of pH on drugs. I must say it is a very difficult topic. Let me clearly explain you. It is a very difficult topic and only few of you will actually understand the depth of it, right? So I will try my best to super simplify the topic for you. And many MCQs and many numericals also come in your exam, in your university exam also from this topic. So without wasting any further time, let me continue. Let me start with the pharmacology. We know that in pharmacology, there are two branches. What is pharmacology? We have already seen it yesterday. Pharmacology is the science of the drugs. So human can have innumerous diseases. From head to toe, we can have disease of any part of the body. And to treat the diseases, we require drugs. The science of the drugs is known as pharmacology. In pharmacology, we are having two branches, the pharmacokinetics and pharmacodynamics. Kinetics and dynamics. We have already seen it yesterday. So just revise it in the first 2 minutes and go ahead. Pharmacokinetics and pharmacodynamics. Just a second. So what is pharmacodynamics? Pharmacodynamics, what the drug does on the body. Drug body पे क्या असर दिखाती है उसे कहते हैं pharmacodynamics, that is mechanism of action of the drug. ठीक है. And what is pharmacokinetics? What is the body doing to the drug? Body drug पे क्या असर दिखाती है उसे कहते हैं pharmacokinetics. There are 4 chapters in pharmacokinetics: absorption, distribution, metabolism or biotransformation, also known as biotransformation, and excretion. So these are the 4 chapters which come here. We have started absorption yesterday, I guess. You can understand the things like here. You can see the simplified sketch diagram I have drawn for you. You can see GIT, blood vessel and various organs shown here. You can see this diagram, understand like this. So this is the drug. Just suppose the person, any person have a disease. Any person, imagine a patient in front of you, the patient is having diarrhea. The patient in your clinic, doctor, I'm having diarrhea. Can you treat it? Can you give me some drug to treat it? So you are giving a drug to treat the diarrhea of your patient. So this is the drug. You are asking to take the drug by mouth, by oral route. Okay? The patient is taking by oral route. The drug is going in the mouth. The drug is going in the esophagus. The drug is going in the stomach. The drug is going in the intestine. Now some drugs are absorbed from stomach and some from intestine. In this session that only I will discuss कि कौन से drug stomach से absorb होते हैं और कौन से intestine से होते हैं. If I tell you the name of any drug, for example aspirin, Disprin, paracetamol or any drug you say, barbiturate, कौन सा drug कहाँ से absorb होता है? Can you tell me कौन से stomach से होते हैं, कौन से intestine से होते हैं? कौन से? So I will tell you this deals with the pH, the effect of pH on the absorption of the drug, on the excretion of the drug. So ultimately drug reaches here. This is known as absorption. Absorption ho gaya. Absorption is the movement of the drug from the site of administration. This is administration till circulation. Circulation में पहुंच गई drug. इसे कहते हैं absorption. So the first step is absorption. After absorption, the drug will go to the tissue. It will enter the tissue. For example, your patient is having diarrhea right now. So the receptor for this drug, this particular drug is present on the intestine. So the movement of the drug from the blood circulation to the intestine, that is any tissue, it is known as distribution. So the second step is the distribution. We are done with what is absorption, we are done what is distribution. After that, the drug already showed its mechanism of action, that already fixed the diarrhea, treat the diarrhea by showing its mechanism of action. Now I want to excrete the drug via kidney into the urine. I want to excrete the drug, but excretion is possible only of polar drug. The drug which is polar, polar का मतलब होता है water soluble, क्योंकि यूरिन water है ना, यूरिन क्या है, liquid. जो ड्रग यूरिन में soluble होगी वही यूरिन में निकल सकती है. यूरिन में insoluble ड्रग यूरिन में भला कैसे निकलेगी? You got my point. So first you have to convert the non-polar drug to polar drug. So non-polar drug को polar drug में convert करने का काम करता है liver और इसे कहते हैं metabolism. So excretion से पहले कराना पड़ेगा metabolism. सो पहले आप नॉन पोलर ड्रग को पोलर में कन्वर्ट कीजिए लीवर के अंदर, उसे कहिए मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद द ड्रग विल कम इनटू द किडनी एंड गेट एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द किडनी इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन. यू गॉट माय पॉइंट? दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन. तो 4 पोर्शन क्या हुए? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन. दीज आर द 4 phases of pharmacokinetics.
फार्मेकोकाइनेटिक्स। और डायनेमिक्स में सिर्फ एक ही चीज आती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो कैन आई से, पहले होता है एब्जॉर्प्शन, बॉडी ड्रग को एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद बॉडी ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसके बाद होता है फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोडायनेमिक्स यानी ड्रग बॉडी पे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाती है। उसके बाद होता है मेटाबॉलिज्म, बॉडी ड्रग का मेटाबोलाइज करती है और बॉडी ड्रग को एक्सक्रीट करती है। सो दैट इज द कंप्लीट सीक्वेंस इन फ्रंट ऑफ यू। Yeah, yes. So absorption, distribution, metabolism, excretion, the four phases of pharmacokinetics, right? So we are done with pharmacokinetics or dynamics का overview. Yes or no? Can I say the overview is done? So pharmacology is the study of drugs, the science of drugs. So pharmacology में दो branches हैं, pharmacokinetics और pharmacodynamics. Pharmacokinetics is the effect of body on drugs. Body drugs के ऊपर क्या असर दिखाती है, right? And pharmacodynamics is the effect of drugs on the body. Drugs body पे क्या करते हैं? You can learn D for D. ठीक है, बॉडी ड्रग पे चार चीजें करती है। बॉडी ड्रग को एब्जॉर्ब करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको मेटाबोलाइज कराती है, नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट करती है, मेटाबोलाइज कराती है लीवर के अंदर, और बॉडी ड्रग को एक्सक्रीट करती है किडनी के थ्रू। ठीक है, ये चार चीजें बॉडी करती है ड्रग के साथ। ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है बदले में? ड्रग बॉडी पे सिर्फ एक चीज करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो फार्माकोकाइनेटिक्स हैव दीज फोर थिंग्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स हैव दिस, राइट? In the last session, we have already started chapter 1, pharmacokinetics का chapter 1 absorption, right? Chapter 1 absorption में we have already seen the factors affecting absorption. Those who have missed it, they must watch the recording. They can't afford missing it. मेरा हर lecture देखना worth है. You are utilizing your time by watching my lectures. तुम्हें कहीं ना कहीं वो add on होगा तुम्हारी studies में, तुम्हारी exams में, university exam में, competitive exam में. Right, so it is worth watching my lectures. Yes or no? Do you feel so? So these are the factors which affects absorption. I have already discussed the 8 factors in the last session. Let me continue the 9th and the last and the most important factor of absorption. That is effect of pH. Effect of pH. Effect of pH. You got my point? Now drugs कितने तरह की होती हैं? How many types of drugs are there? Let me tell you the classification of the drugs. You know, drugs से मेरा मतलब है all chemicals which are used to treat the diseases. ठीक है, ड्रग से मेरा मतलब है हर मेडिसिन, हर केमिकल which are used to treat the diseases. The tablets, the capsules, the syrups, the injections, all chemicals. That is drugs. Drugs are of two types. They can be non-electrolyte. They can be non-electrolyte and they can be electrolyte. They can be electrolyte. If they are electrolyte, again they are of two types. Strong electrolyte and weak electrolyte. You know, non-electrolyte drugs do not ionize. Their absorption depends on lipid solubility. If they are lipid soluble, they will get absorbed. If they are not lipid soluble, they will not absorb. So their absorption, they do not ionize. Do not ionize. ये ionize नहीं होती हैं. In chemistry, you know कि electrolyte नहीं है तो they will not split. Ionization का मतलब split नहीं होंगे. लेकिन electrolytes ionize. Strong electrolytes 100% ionize. Weak electrolytes partially ionize, and their ionization depends on pH. But most of the drugs are weak electrolyte. इसलिए there is effect of pH. ठीक है? So most of the drugs are weak electrolytes. Strong electrolytes, they 100% ionize. They completely ionize. But weak electrolytes ionize partially and it is pH dependent. So pH dependent आपका weak electrolyte होता है, strong electrolyte नहीं होता है. और non electrolyte तो lipid solubility पे depend करते हैं. So that is the overview. So I will talk about the weak electrolyte drugs. Weakly acidic, weakly basic. Weak. The word here is weak. So I'm talking about weak drugs. The weak acidic and weak basic. The weak electrolytes. Most of the drugs are weak electrolytes. तो पहली बात तो ये weak है. Weak acidic, weak basic drug. अब what is acidic drug? What is basic? थोड़ा सा chemistry पढ़ेंगे आज. In this 8th, 9th standard of your schooling, you may have studied chemistry. आज थोड़ा सा revision हो जाएगा. What is the definition of acid? What is acid? What is the definition of a base? Chemistry में क्या definition पढ़ाया है आपको आपके स्कूल में? Acid क्या होता है? Acid वो होती है जिसमें एक प्रोटॉन होता है. So can I say the formula, generalized formula of acid is Ha, right? Ha. H is the proton. It can be, you will say, ma'am, HCl. Okay. It can be HNO3. Okay. It can be H2SO4. Okay. सब में एक H है. देखो, H is the proton. और जो A है, A can be the drug. आपका A drug है. You got my point? So HA is the acid.
HCl, HNO3, HSO4, whatever. So there are multiple acids, you know. ठीक है, उन सब में एक प्रोटॉन होता है, तो Ha is the acid. ठीक है, बेस क्या होता है? How will you define base? बेस में होता है OH, hydroxyl ion. So can I say the formula of base is BOH? BOH can be NaOH, it can be KOH, it can be calcium OH, right? कुछ भी हो सकता है. So BOH, OH is the formula of the base, hydroxyl ion. बोल सकती हूँ क्या? Acid और base का formula समझ में आया क्या? So what is the acid? HA. What is the base? BOH. Again listen, ये tough topic है. Again I am warning. इसे warning समझ लो, चेतावनी समझ लो, डराना समझ लो. ये topic तो tough है ना? देखो सबके समझ में आने नहीं वाला, इसलिए concentrate करो. Maybe you are the lucky one कि तुम्हें समझ में आ जाए. ठीक है, तो HA एसिड है, मुझे लगता नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को भी. ये स्प्लिट कैसे होगा? How you will split? HA will split into H positive and A negative. Can I say? Yes, I can say, right? H positive Cl negative, HCl, H positive NO3 negative, HNO3. ठीक है, BOH कैसे स्प्लिट होगा? How you will split BOH? NaOH को कैसे स्प्लिट करोगे? Na positive, OH negative. ठीक है, so we will split like B positive and OH negative. हमेशा एग्जांपल लेके चलो. कह सकती हूँ क्या? Yes, yes, I can say this. Now listen what I want to say here. Listen everyone here. Acid कहाँ पे है इसमें? ये तो प्रोटॉन है. This one is proton. Call it as a proton. It is a proton. It is not acid. अब आप बोलोगे ड्रग ये है या ये है, तो ड्रग A is the drug. तो यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A in the form of HA है. तो ड्रग इज इन टू फॉर्म. ये कंप्लीट ड्रग है, ये टूटी हुई नहीं है, स्प्लिटेड नहीं है. इसको कहते हैं अनआयोनाइज्ड. दिस इज अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग. दिस इज अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग. एंड दिस वन, द स्प्लिटेड वन, जो एक आयन है, इसके ऊपर A नेगेटिव लगा हुआ है, ये है आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग. आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग. सो ड्रग दोनों फॉर्म में है, आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड. यू गॉट माई पॉइंट? ये ड्रग नहीं है, ये तो प्रोटॉन है. सो ड्रग इज इन टू फॉर्म, आयोनाइज्ड, अनआयोनाइज्ड. राइट, प्लीज अंडरस्टैंड. सेम बेस में भी एप्लीकेबल है. कहां पे है ड्रग? ये आपका हाइड्रोक्साइल आयन है, ये ड्रग नहीं है. दिस इज योर हाइड्रोक्साइल आयन. तो ड्रग कहां है? ड्रग या तो ये है या तो ये है. दिस वन इज कंप्लीट. There is no charge over it, positive or negative, no charge. So this one is known as unionized. Unionized का मतलब होता है unsplitted, टूटा हुआ नहीं है, complete है. Unionized, the complete one. और ये टूटा हुआ है, complete नहीं है, ये incomplete है. इसके ऊपर एक चार्ज है, प्लस चार्ज है. यहाँ पे माइनस चार्ज था, ये प्लस चार्ज है. इसे कहते हैं ये एक आयन है, क्योंकि इसके ऊपर एक चार्ज है ना, तो ये एक आयन है, इसलिए कहेंगे इसे आयोनाइज्ड फॉर्म. यू गॉट माय पॉइंट? पहले तो आयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड का मतलब ही नहीं समझता. 80% स्टूडेंट डोंट नो मैम आयोनाइज्ड ड्रग कौन सी होती है, अनआयोनाइज्ड कौन सी होती है. अरे आयोनाइज्ड नाम में ही मतलब है. आयोनाइज्ड वो ड्रग है जो कि एक आयन है. आयन मतलब उसके ऊपर चार्ज है, या पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके ऊपर एक चार्ज है, या तो वो कैटायन है या तो वो एनायन है, लेकिन वो एक आयन है. कैटायन है या एनायन है, लेकिन वो एक आयन है. राइट, दैट इज आयोनाइज्ड फॉर्म. और अनआयोनाइज्ड फॉर्म है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो कंप्लीट है. नाउ बॉडी का एक रूल है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी, उसका एक रूल है. ह्यूमन बॉडी अनआयोनाइज्ड फॉर्म को एब्जॉर्ब करती है और आयोनाइज्ड फॉर्म को एक्सक्रीट कर देती है. रखती नहीं है बॉडी में, इसको एक्सक्रीट कर देती है यूरिन में. ये रूल है, ये रूल है. अनआयोनाइज्ड को एब्जॉर्ब करती है और आयोनाइज्ड को एक्सक्रीट करती है. मैंने रूल रिपीट किया. एसिडिक और बेसिक रूल सेम है. देखो ऐसे याद करो. मैंने कैसे याद किया है? बॉडी को कंप्लीट चीज पसंद है, टूटी फूटी पसंद नहीं है. बॉडी ने कहा ये टूट फूट गया, ये आयन है, इसको एक्सक्रीट कर दो. कंप्लीट है तो इसको रख लो, इसको एब्जॉर्ब कर लो. सो बॉडी एब्जॉर्ब्स अनआयोनाइज्ड फॉर्म. आप कभी नहीं भूलोगे, आप नहीं भूलोगे. बॉडी किसको एब्जॉर्ब करेगी? अनआयोनाइज्ड को. और एक्सक्रीट किसको कर देगी बॉडी से? आयोनाइज्ड को. सो अनआयोनाइज्ड ड्रग्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, ionized excreted from the body. Everyone give me a thumbs up. Everyone give me a thumbs up. Everyone. समझ में आया क्या? ड्रग एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, डिपेंडिंग तुम्हारी कौन सी ड्रग्स हैं. बहुत सारी ड्रग्स एसिडिक होती हैं, बेसिक होती हैं. यू हैव टू लर्न द नेचर ऑफ द ड्रग. हर ड्रग का अपना नेचर होता है. यू गॉट माई पॉइंट? जैसे कि डिस्प्रिन, एस्पिरिन, जो एस्पिरिन है, इट इज अ एनाल्जेसिक, यू कैन से. एनसेड है, एस्पिरिन इज वन ऑफ द एनसेड. इट इज अ एसिडिक ड्रग. राइट, सो यू हैव टू लर्न द क्लासिफिकेशन, कौन सी ड्रग्स एसिडिक हैं, कौन सी बेसिक है. अच्छा ठीक है. बीइंग अ डॉक्टर तुम क्या चाहते हो? बीइंग अ डॉक्टर तुम ड्रग का एब्जॉर्प्शन चाहते हो कि एक्सक्रीशन चाहते हो? आई एम आस्किंग यू, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? यू आर अ डॉक्टर ना. फॉर योर पेशेंट,
For example, there is one patient in my clinic. I'm sitting in my OPD. The patient is coming and saying, doctor, I'm having this complaint, this complaint, this complaint. I'm feeling low. I'm this, I'm having fever. I'm having pain, this. A list of complaints. So for treating all those complaints, I have make a diagnosis and I will start the treatment. I will prescribe a drug to my patient. Oh, Mr. and Mrs. Miss So, you please take this drug. You will be all right. So this is my prescription. This is my drug. Now that drug can be acidic, can be basic, whatever. Now the patient is taking the drug by mouth. Right, so drug is going inside, in the stomach the drug is going, in the stomach and in the intestine the drug is going when the patient is taking by mouth with water. So the drug is going in the stomach and in the intestine. In the stomach and intestine the drug is splitting like this. So a small portion of the drug is like this and small portion is like this. So what do you want being a doctor? You want the portion to be absorbed or you want the portion to be excreted? What do you want? Now, most of the students, I know you are saying absorption. Being a doctor, you always want absorption. Are you sure? Those who are saying absorption, पक्का हमेशा absorption चाहिए क्या? Consider एक दूसरा case. चलो, you are sitting in your OPD and emergency stretcher पे एक boy को लाया गया, 18 years old boy. He tried to commit suicide by ingesting 100 tablets together. उसने 100 स्लीपिंग पिल्स एक साथ ले ली, अल्प्राजोलम. उसने एक साथ 100 टैबलेट्स ले ली. ही वांट टू कमिट सुसाइड बिकॉज टुडे ही गॉट हिज रिजल्ट्स ऑफ 10th क्लास और 12th क्लास एंड ही इज फेल्ड. सो ही फील्ड अशेम्ड एंड ही ट्राइड टू कमिट सुसाइड. ये एक इंसिडेंस मैंने कोट किया, ठीक है. तो पेरेंट्स, ही इज अनकॉन्शियस. पेरेंट्स आर ब्रिंगिंग द चाइल्ड टू यू. डॉक्टर, सेव माई चाइल्ड. माई चाइल्ड ट्राइड टू कमिट द सुसाइड. He has ingested 100 tablets together. See, this is the empty strip, right? वो सारी की सारी 100 टैबलेट वो ऑलरेडी ले चुका है पानी से. एम्प्टी स्ट्रिप है. द टैबलेट इज ऑलरेडी इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन. नाउ इस सिचुएशन में तुम एब्जॉर्प्शन चाहते हो कि एक्सक्रीशन? राइट. सो यू कैन नॉट से व्हेन यू वांट एब्जॉर्प्शन, व्हेन यू वांट एक्सक्रीशन. सुसाइड वाले केस में यू वांट एक्सक्रीशन, यू डू नॉट वांट एब्जॉर्प्शन. But for treating a patient, you want absorption, you do not want excretion. So depending on situation to situation, you can require absorption, you can require excretion. तो you can ask me a question, absorption, excretion, मैम क्या हमारे हाथ में है? हम उसको अल्टर कर सकते हैं क्या being a doctor? Yes, we can do it by changing the concentration of unionized and ionized drug. हम unionized और ionized का concentration change कर सकते हैं depending on the pH of the medium. हम pH of the medium alter कर सकते हैं. So we can change the absorption and excretion of the drug. Yes, it is in our hands. We can do so. हमें absorption ज्यादा चाहिए तो unionized form को ज्यादा रखो. एक्सक्रीशन ज्यादा चाहिए तो आयोनाइज्ड को ज्यादा रखो. ये गोल्डन रूल है. अनायोनाइज्ड हमेशा एब्जॉर्ब होगा और आयोनाइज्ड हमेशा एक्सक्रीट होगा. तो आप बोलो कि मैम ये मैं कैसे अल्टर कर सकता हूं या कर सकती हूं? ये कंसंट्रेशन आप कह रहे हो, इफ यू वांट एब्जॉर्प्शन तो आप इसको ज्यादा रख लो, इफ यू वांट एक्सक्रीशन तो आप इसको ज्यादा रख लो. तो ये ज्यादा कम हम कैसे करेंगे? तो ज्यादा कम का खेल समझने के लिए पीएच समझना पड़ेगा. हम पीएच को चेंज करके इनके कंसंट्रेशंस को चेंज कर सकते हैं. आयोनाइज्ड और अनायोनाइज्ड को वी कैन चेंज विद द हेल्प ऑफ पीएच. स्टोरी समझ में आई क्या? हाँ, ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी मूवी अभी बाकी है. ये तो ट्रेलर था. समझ में आया क्या ट्रेलर मूवी का? चलो आगे बढ़ेंगे. सो अब आगे पूरा मैं सिर्फ एसिडिक ड्रग लेके समझाऊंगी. बेसिक तुम होमवर्क है, खुद कर लेना, ठीक है. मैं दोनों नहीं कर सकती, इट विल कंज्यूम माई टाइम. तो मैं एसिडिक लेके पूरे फॉर्मूले समझा दूंगी, डेरिवेशन समझा दूंगी, न्यूमेरिकल समझा दूंगी. बेसिक तुम जस्ट उसका रिवर्स करते जाना, ठीक है. तो एसिडिक का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है. यू कैन सी द एसिडिक, वीक एसिडिक ड्रग. व्हाट इज द ड्रग? द नेम ऑफ द ड्रग इज HA. यू कैन सी स्प्लिट कैसा हुआ है, HA, H पॉजिटिव, A नेगेटिव, ठीक है. तो ड्रग इज इन 2 फॉर्म. व्हाट आर द 2 फॉर्म्स ऑफ द ड्रग? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? 2 फॉर्म क्या है? ये है आपका अनआयोनाइज्ड फॉर्म और ये है आपका आयोनाइज्ड फॉर्म. अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड. गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल कहता है आयोनाइज्ड जो रहता है वो हमेशा एक्सक्रीट होता है और जो अनआयोनाइज्ड होता है ये अब्सॉर्ब होता है. ये है गोल्डन रूल. ये कभी मत भूलना. अगर ये भूल गए ना तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा. ये गोल्डन रूल है. बॉडी किसको एब्सॉर्ब करती है? जो कंप्लीट है. बॉडी को कंप्लीट चीजें पसंद है, टूटी फूटी पसंद नहीं है. तो कंप्लीट चीज कौन सी है? अनआयोनाइज्ड. ये वाली, ये बॉडी एब्सॉर्ब करेगी. और एक्सक्रीट कौन सी करेगी? जो ऑलरेडी आयन है. बॉडी को आयन्स पसंद नहीं है तो बॉडी इसको एक्सक्रीट कर देती है, ठीक है. सो आयोनाइज्ड आर एक्सक्रीटेड. ये गोल्डन रूल कभी मत भूलना. अब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये लर्न करना पड़ेगा. आप इसका रीजन पूछोगे तो मुझे नहीं पता, ठीक है. यू हैव टू लर्न इट, ठीक है. नाउ कमिंग ऑन द फॉर्मूला. So in chemistry you have already learned this formula in your childhood. मैंने तो ये 8th standard में पढ़ा था. In my CBSE syllabus मैंने ये 8th standard में पढ़ा था. आपने कब पढ़ा था मुझे नहीं पता. So pH is equal to pKa plus logarithm of
आयोनाइज्ड फॉर्म अपॉन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। देखो ऊपर आयोनाइज्ड है, नीचे अनआयोनाइज्ड है, मैं एसिडिक ड्रग की बात कर रही हूं, ठीक है क्या? व्हाट इज द फॉर्मूला? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला? सो आई विल राइट द फॉर्मूला फॉर यू। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? पीएच का फॉर्मूला क्या है? पीएच का फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में केमिस्ट्री में। द सेम फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉगरिथम ऑफ आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड ऊपर है न्यूमरेटर में और अनआयोनाइज्ड डिनोमिनेटर में। सो यू हैव टू लर्न पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉगरिथम ऑफ आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज पीकेए हियर? पीके को कैसे डिफाइन करोगे? कौन बताएगा पीके क्या है? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, क्या है पीके? पीएच तो पीएच है, यू नो व्हाट इज पीएच। पीके क्या है? हु विल टेल मी पीके? पीके क्या है? अच्छा, ये पीके समझने के लिए मैं फिर से रिएक्शन लिखती हूं। HA it will split into H positive and A negative. Can I say this? You will say मैम yes, ठीक है, बढ़िया है, बराबर है। आपने अगर ये 100 मिलीग्राम लिया, अगर आपने 100 मिलीग्राम ड्रग लिया, जस्ट सपोज 100 मिलीग्राम लिया, कंप्लीट ड्रग मैंने लिया, टैबलेट लिया, मैं पेशेंट हूं, मैंने टैबलेट लिया, HA लिया, कंप्लीट ड्रग लिया, मुंह से लिया, माउथ से लिया, पानी से लिया, ठीक है। सो आफ्टर गोइंग इन माई स्टमक एंड इंटेस्टाइन 50% ऐसा ही रहा और 50% स्प्लिट हो गया, 50% स्प्लिट हो गया, जस्ट सपोज। सो करंटली आई एम हैविंग 50% ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म एंड 50% ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म। कैन आई से? कैन आई से? इट कैन बी, इट कैन हैपन। आप बोलो ठीक है मैम, आपने एक कंप्लीट ड्रग लिया। जो हम ड्रग लेते हैं, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, वो तो कंप्लीट है, अंदर जाने के बाद वो आयोनाइज हो रहा है। तो जस्ट सपोज 50% कंप्लीट रह गया, अभी भी कंप्लीट है, और 50% हो गया आयोनाइज। तो ये दोनों की वैल्यू हो गई 50-50। यस, बोथ विल कैंसल आउट, ठीक है, 50-50 दोनों कैंसल हो गए, तो यहां पे हो गया 1, राइट। मैथमेटिक्स करेंगे थोड़ा। लॉगरिथम 1 क्या होता है? हु विल टेल मी लॉग 1 की वैल्यू? अरे लॉग 1 की वैल्यू, हु विल टेल मी? लॉग 1 इज इक्वल टू 0, पता है कि नहीं? log 1 is equal to 0, कॉमन सेंस, एवरीवन नोज दिस। सो ये वैल्यू हो गई log 1 is equal to 0, 0, तो pH is equal to pK। कैन आई से? pH is equal to pKa। अब बताओ डेफिनेशन pKa की। ये सब मैंने तामझाम क्यों किया? pKa समझाने के लिए। pKa वो pH है, ऐसा pH जिस पे ड्रग 50% आयोनाइज है, 50% अनायोनाइज है, उस pH को कहते हैं pK। सो इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट। ये वो pH है जिस पे ड्रग आधी आयोनाइज है, आधी अनायोनाइज है, हिंदी में कहूं तो। You got my point? So pKa is such a pH at which the drug is 50% ionized and 50% unionized. ठीक है, such pH is known as pK. Give me a thumbs up everyone. So ये हो गई pKa की value. The same thing is written in front of you. If you say 50% drug is ionized and 50% is unionized, both are equal. So they will cancel out. They will cancel out, it will become 1. And log 1 is equal to 0. 0. So in that case, pH is equal to pK. So pKa is numerically equal to that pH at which 50% drug is ionized and 50% is unionized. Everyone give me a thumbs up. तुम्हें ये समझ में आ गया तो आगे की सिचुएशन अब थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है। नाउ चीजें डिफिकल्ट होती जाएंगी, ठीक है। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, ठीक है। कैन यू सी दिस फॉर्मूला? हर पॉइंट पे मुझे थम्स अप देते जाना, मुझे थम्स अप चाहिए हर पॉइंट पे अगर समझ में आ रहा है तो। राइट, आई विल फ्लिप द पेज, यू गिव मी थम्स अप। यू ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है। आई गेस एवरीवन नोज इट। pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉगरिथम ऑफ आयोनाइज्ड अपॉन अनायोनाइज्ड। ये उल्टा मत कर देना गलती से भी। आयोनाइज्ड हमेशा न्यूमरेटर में है, अनायोनाइज्ड हमेशा डिनोमिनेटर में है। गिव मी अ थम्स अप, ठीक है। अब मैं 3 सिचुएशन लूंगी, प्लीज एवरीवन सी। आई विल टेक 3 सिचुएशन, सिचुएशन 1, 2, 3। सी द सेंट्रल सिचुएशन, pH इज इक्वल टू pK at which the drug is 50% ionized, 50% unionized। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और log 1 is equal to 0, उस केस में pH is equal to pK हो जाएगा। इसको मैं न्यूट्रल pH मान लेती हूँ 7 मान लेती हूँ न्यूट्रल। वाटर का pH अगर माने, हम वाटर माने तो pH 7 है। अब मुझे बताओ एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है? कौन बताएगा एसिडिक क्या होता है? यू विल से मैम pH कम होता है जब, लेस देन 7 एसिडिक होता है और मोर देन 7 बेसिक होता है। ये तो सबको पता होगा ना। इफ आई से pH 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेस देन 7 तो वो सब एसिडिक हैं। तो मैं एसिडिक pH बनाने के लिए, pH को मुझे एसिडिक बनाना है, pH को मुझे क्या बनाना है? मुझे pH को क्या बनाना है? ये न्यूट्रल था, दिस वन वाज न्यूट्रल, दोनों इक्वल हैं। अगर मुझे एसिडिक बनाना है तो pH मुझे एटलीस्ट 1 से कम करना पड़ेगा। 7 में से 7 - 1 इट विल बी 6, तो 1 यूनिट से कम करना पड़ेगा। राइट, pH इज इक्वल टू pK -1 करना पड़ेगा तो pH हो जाएगा एसिडिक।
कैन आई से? यस। और बेसिक करने के लिए 1 प्लस करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि बेसिक पीएच 7 से ज्यादा होते हैं, 8, 9, 10, 11, 12। यू गॉट माई पॉइंट? तो पहली बात तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, जो भी मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ, उनको यही नहीं पता होता कि मैम एसिडिक के लिए -1 क्यों किया और बेसिक के लिए +1 क्यों किया। अभी समझ में आया क्या? एसिडिक पीएच लेस देन 7, तो आप एसिडिक तरफ जाना, नॉट नेसेसरी -1, यू कैन डू -2, -3, -4, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर द सेक ऑफ इजीनेस, हमने 1 ले लिया, ठीक है? तो ये हो गया आपका एसिडिक पीएच, और हमने +1 कर दिया तो हो गया बेसिक। बोलो -1, बोलो +1, दैट इज एसिडिक बेसिक, बीच में है न्यूट्रल। गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप। समझ में आता जा रहा है क्या? चलो देखो, अब अगली बात देखो, आप चाहते हो ये फॉर्मूला बने। चलो अगले पेज पे आते हैं, गिव मी अ थम्स अप। चलो अगले पेज पे आएंगे, समझेंगे आगे क्या है। देखो इधर, यू वांट दिस टू हैपन, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉगरिथम ऑफ आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड। यू वांट दिस -1, सो यू वांट दिस वैल्यू टू बी -1, यस और नो? इस वैल्यू को तुम -1 करना चाहते हो, सो दैट pH इज इक्वल टू pKa -1 हो जाएगा, और यहां पे तुम इसी वैल्यू को +1 करना चाहते हो हियर, राइट? और यहां पे तुम इसी वैल्यू को 0 करना चाहते हो, यस और नो? सो दिस वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। विच वैल्यू? लॉगरिथम आयोनाइज्ड बाय अनआयोनाइज्ड। यहां पे तुम चाहते हो ये -1 हो जाए, यहां पे तुम चाहते हो +1 हो जाए, और यहां पे चाहते हो 0 हो जाए। टेल मी, समझ में आया क्या? ये सबसे बड़ा पॉइंट मैंने बोला। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, राइट? तुम चाहते हो ये फॉर्मूला आए, तो तुम चाहते हो इस वैल्यू, इसका आंसर -1 आएगा, तभी ये बनेगा। सो pH इज इक्वल टू pKa, ये पूरी वैल्यू -1 बन जाए, या फिर ये पूरी वैल्यू +1 बन जाए, या फिर ये पूरी वैल्यू 0 बन जाए। तो ये वैल्यू या तो -1, या तो +1, या तो 0, तुम ऐसा चाहते हो, यस? सो दैट यू कैन डू सो, यस और नो? चलो आगे एक स्टेप और आगे जाएंगे। इतना समझ में आया है ना? तो एक स्टेप और आगे जाके हम समझेंगे अब ये वैल्यू -1 कैसे आएगी। मुझे बताओ, लॉग, किस चीज का लॉग -1 होता है? तुमने लॉगरिथम चैप्टर पढ़ा है मैथमेटिक्स में? इन 8th और 9th स्टैंडर्ड लॉगरिथम होगा तुम्हें इन योर सिलेबस, इन योर स्कूल। तो यू टेल मी, किसकी वैल्यू -1 होती है? log 10 to the power -1 और log 1/10। log 1/10 होगा तो आंसर -1 आएगा। सो कैन आई से ये -1 तब आएगा जब आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड 1/10 होगा। 1/10 मतलब 10 to the power -1, और उसका आंसर आ जाएगा, इसका लॉगरिथम निकालूंगी तो -1 आएगा। सो कैन आई से log 10 to the power -1 is equal to -1? कैन आई से? यस। सो कैन आई से आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड 1/10 है, तो यहाँ पे आयोनाइज सिर्फ 1 है और अनआयोनाइज 10 है। कैन आई से? यू विल से मैम यस, ठीक है। यहाँ पे कैन आई से +1 आंसर कब आएगा? +1 कब आएगा आंसर? +1 आएगा जब 10/1 होगा, 1/10 नहीं, 10/1 होगा। तो यहाँ पे आयोनाइज 10 है, अनआयोनाइज्ड 1 है। देखो उल्टा है पूरा, यहाँ पे 10 to the power +1 है, सो log 10 to the power +1 is equal to +1, log 10 to the power -1 is equal to -1। आई गेस तुम्हें इतना पता है। और 0 कब आएगा? log 1 is 0, log 1 होगा ये तो 0 आएगा, ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल हैं। तो देखो तीनों सिचुएशन, अगेन आई एम रिपीटिंग, एसिडिक मीडियम में आयोनाइज्ड इज लेस, अनआयोनाइज्ड इज मोर, अनआयोनाइज्ड इज 10 times than ionized एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में आयोनाइज्ड इज 10 times more than अनआयोनाइज्ड, राइट? और न्यूट्रल मीडियम में, एसिडिक बेसिक नहीं, बोथ आर इक्वल, नो वन इज मोर। ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों 1-1 है। यहां पे ये ज्यादा है, कौन ज्यादा है? अनआयोनाइज्ड। और यहां पे कौन ज्यादा है? आयोनाइज्ड ज्यादा है। यू गॉट माई पॉइंट? और हमारी ड्रग है एसिडिक, ये सब मैं लेके चल रही हूँ एग्जांपल एसिडिक ड्रग का। बेसिक में सब कुछ उल्टा हो जाएगा, एसिडिक लेके चल रही हूँ। चलो अगले पेज पे, लास्ट पेज। एवरीवन गिव मी अ थम्स अप देते जाओ फटाफट। तो इस सिचुएशन में मैंने क्या कहा? देखो अनआयोनाइज्ड 10 है, आयोनाइज्ड 1 है, सो अनआयोनाइज्ड इज मोर देन आयोनाइज्ड। से यस, हाँ बोलो, हाँ बोलो। अनआयोनाइज्ड इज मोर देन आयोनाइज्ड। तुम्हें गोल्डन रूल पता है क्या? गोल्डन रूल है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म एब्जॉर्ब होता है, आयोनाइज्ड एक्सक्रीट होता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन इज मोर देन एक्सक्रीशन, इतना ज्यादा कि ये 99% होंगे, ये सिर्फ 1% होंगे। सो मैं कंसिडर करूंगी अनआयोनाइज्ड और एब्जॉर्प्शन इज प्रीडोमिनेंट हियर। और यहाँ पे होगा उल्टा, यहाँ पे तुम देख रहे हो आयोनाइज्ड इज 10 times, अनआयोनाइज्ड इज ओनली 1। सो आयोनाइज्ड और ionized form is more and ionized form is excreted, तुम्हें पता है गोल्डन रूल। सो ionized और excreted is more as compared to others, so that will predominant, right? और न्यूट्रल पे तो सब कुछ इक्वल होगा, न्यूट्रल पे 50-50% होगा। सो व्हाट इज द समरी? हमने क्या सीखा? समरी देखो, मैं समरी बोल रही हूँ, एक ही बार बोलूंगी मैं। एसिडिक ड्रग के लिए, राइट डाउन एसिडिक हियर, एसिडिक ड्रग के लिए, एसिडिक ड्रग के लिए
एब्जॉर्प्शन, अगर आप चाहते हो एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो, आप क्या चाहते हो, एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो, एब्जॉर्प्शन हो तो आपको चाहिए अनायोनाइज्ड फॉर्म रहे, और उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एसिडिक मीडियम। सो एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होती है, राइट और एसिडिक ड्रग बेसिक मीडियम में, एसिडिक ड्रग बेसिक मीडियम में एक्सक्रीट होती है। सो एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होती है, दैट इज अनायोनाइज्ड फॉर्म में रहती है, और एसिडिक ड्रग बेसिक मीडियम में एक्सक्रीट होती है, दैट इज आयोनाइज्ड फॉर्म में रहती है। ये समरी है, और बेसिक का जस्ट उल्टा हो जाएगा, बेसिक ड्रग बेसिक में एब्जॉर्ब होती है और एसिडिक में एक्सक्रीट होती है। मैं बोलूं क्या, फिर से मैं बोलूं क्या, सुनो, दो तरह की ड्रग्स हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ ड्रग्स, मैं इंप्लीकेशन भी बताऊंगी, एसिडिक ड्रग एंड बेसिक ड्रग, एसिडिक ड्रग एंड बेसिक ड्रग, द टू टाइप ऑफ ड्रग्स आर देयर, राइट। तुम्हें क्या चाहिए, अगर सुसाइड केस है तो हम चाहते हैं इनका एक्सक्रीशन हो, हम नहीं चाहते एब्जॉर्प्शन हो, और ट्रीटमेंट का केस है तो हम चाहते हैं एब्जॉर्प्शन हो। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन हमें एब्जॉर्प्शन की भी जरूरत लग सकती है और एक्सक्रीशन की भी जरूरत लग सकती है। हम चाहते हैं एब्जॉर्प्शन भी हो, एक्सक्रीशन भी हो, डिपेंडिंग ऑन द नीड। यू गॉट माई पॉइंट, कभी हम एब्जॉर्प्शन चाहते हैं, कभी हम एक्सक्रीशन चाहते हैं। सो एसिडिक ड्रग्स एब्जॉर्प्शन के लिए लगता है, देखो गोल्डन रूल है, एब्जॉर्प्शन के लिए सेम मीडियम लगता है। एसिडिक ड्रग, एक मिनट, हाँ, एसिडिक ड्रग एंड बेसिक ड्रग, तुम चाहते हो एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो और एसिडिक ड्रग का एक्सक्रीशन हो, ठीक है। तुम चाहते हो बेसिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो और बेसिक ड्रग का एक्सक्रीशन हो, तो तुम्हें कौन कौन सा मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा, एसिडिक ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करो। सो एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम एसिडिक मीडियम, दैट इज एसिडिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक, स्टमक में होता है एसिडिक मीडियम, ठीक है। और बेसिक ड्रग्स एब्जॉर्ब फ्रॉम बेसिक मीडियम, ठीक है, दैट इज दे एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन। सो एब्जॉर्प्शन के लिए सेम मीडियम लगता है। तुम चाहते हो एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब हो तो एसिडिक मीडियम दे दो, तुम चाहते हो बेसिक ड्रग एब्जॉर्ब हो तो बेसिक मीडियम दे दो, ठीक है। सो एसिडिक ड्रग्स एब्जॉर्ब फ्रॉम एसिडिक मीडियम, बेसिक ड्रग्स एब्जॉर्ब फ्रॉम बेसिक मीडियम, फॉर एब्जॉर्प्शन सेम मीडियम इज रिक्वायर्ड। एक्सक्रीशन के लिए अपोजिट मीडियम लगता है। तुम चाहते हो एसिडिक ड्रग एक्सक्रीट हो जाए यूरिन में, तो तुम्हें बेसिक पीएच बनाना पड़ेगा, यूरिन का पीएच बेसिक बनाना पड़ेगा। एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन एक ही है, दोनों किडनी में एक्सक्रीट होंगे, लेकिन यूरिन का पीएच वी कैन अल्टर, ठीक है। और बेसिक ड्रग एक्सक्रीट होगी एसिडिक मीडियम में, तो यूरिन का पीएच तुम्हें एसिडिक बनाना पड़ेगा। समझ में आई क्या? प्लीज लर्न इट, प्लीज लर्न इट। सो लर्न द टू गोल्डन रूल्स। मेरे हिसाब से दो गोल्डन रूल हैं, फॉर एब्जॉर्प्शन एंड फॉर एक्सक्रीशन। फॉर एब्जॉर्प्शन सेम मीडियम इज रिक्वायर्ड, same medium, acidic drugs absorbed in acidic medium, basic drugs absorbed in basic medium. For excretion opposite medium is required, for excretion opposite medium is required. Acidic drugs are excreted in basic medium and basic drugs are excreted in acidic medium. समझ में आया क्या? So that is the first golden rule. दूसरा golden rule है हमारा आयन और अनायन, right? So आयोनाइज्ड और अनायोनाइज्ड ड्रग्स का क्या है? एब्जॉर्प्शन हमेशा अनायोनाइज्ड फॉर्म का होता है और एक्सक्रीशन हमेशा आयोनाइज्ड फॉर्म का होता है। सो प्लीज लर्न, अगर ये दो गोल्डन रूल पता है, नो वन कैन बीट यू, ठीक है। तुम हमेशा सही होगे सारे न्यूमेरिकल्स में। यू गॉट माई पॉइंट? चलो हम इसका क्लिनिकल इंप्लीकेशन समझेंगे। द क्लिनिकल इंप्लीकेशन, देयर आर टू इंप्लीकेशन। सो यू टेल मी साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो एसिडिक ड्रग्स like aspirin, like other drugs, they all are absorbed from stomach. That is because they are absorbed from stomach because they are unionized at stomach. So same medium. Acidic drugs are absorbed from acidic medium, and basic drugs are absorbed from intestine. That is basic medium because they are unionized. So ये unionized रहते हैं, इन medium पे ये unionized रहेंगे, इसलिए ये absorb हो जाएंगे, right? So that is the site of absorption. Imagine basic drug का example है atropine. You know धतूरा, atropine. देखो, ये देखो, एक पेशेंट है, उसने एस्पिरिन लिया, एसिडिक ड्रग लिया, एस्पिरिन लिया, और एक पेशेंट है, उसने एट्रोपिन लिया। एट्रोपिन एक बेसिक ड्रग है, तो एस्पिरिन भी अंदर जाएगा, एट्रोपिन भी अंदर जाएगा। एस्पिरिन एब्जॉर्ब होगा स्टमक में से बिकॉज इट इज अ एसिडिक ड्रग, ठीक है, और एट्रोपिन एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन से बिकॉज इट इज अ बेसिक ड्रग। सो एसिडिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक एंड बेसिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन बिकॉज acidic drugs at acidic medium they remain unionized and basic drug at basic medium they remain unionized and unionized form is absorbed. ठीक है, ये हो गया absorption. अब आते हैं excretion पे, right? The drugs are already absorbed. अब acidic है तो यहां से absorb हो गई, basic है तो यहां से absorb हो गई, absorb होके the drug already shows its mechanism of action. Now I want to excrete the drug. अब टाइम है drug के excretion का, absorption की बात नहीं है, absorption complete हो चुका है। acidic है तो वो यहां से absorb हुआ और basic है तो यहां से absorb हुआ। एब्जॉर्प्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन है। एसिडिक ड्रग्स एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक
एंड बेसिक ड्रग्स एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये रूल है। लेकिन एक्सक्रीशन दोनों का किडनी से होता है। एक्सक्रीशन के लिए एक ही ऑर्गन है, भले वो एसिडिक ड्रग हो भले बेसिक हो, लेकिन किडनी के अंदर है यूरिन, और यूरिन का पीएच हम अल्टर कर सकते हैं एसिडिक और बेसिक। तो ऑर्गन तो एक ही है लेकिन पीएच दो अलग अलग हो सकते हैं। यू गॉट माय पॉइंट। सो अगर तुम चाहते हो एसिडिक ड्रग का एक्सक्रीशन हो तो पीएच बना दो बेसिक, यूरिन का पीएच बेसिक कर दो, और तुम चाहते हो बेसिक ड्रग का एक्सक्रीशन हो तो तुम यूरिन का पीएच कर दो एसिडिक। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारी ड्रग यहाँ पे ब्लड में अगर एस्पिरिन है, तुम चाहते हो एस्पिरिन एक्सक्रीट हो जाए किडनी में से, तो एस्पिरिन एक एसिडिक ड्रग है तो यूरिन का पीएच बेसिक कर दो। इफ यू बेसिफाई द यूरिन, एक्सक्रीट हो जाएगी वो। और अगर तुम्हारी ड्रग है एट्रोपिन एक बेसिक ड्रग है, तुम चाहते हो ये एक्सक्रीट हो किडनी से, तो यूरिन का पीएच कर दो एसिडिक, राइट। सो एक्सक्रीशन अकर्स इन अपोजिट मीडियम। यू गॉट माय पॉइंट। वी विल डू सम क्वेश्चंस एंड एंड दिस सेशन। समझ में आया क्या गोल्डन रूल? क्या है गोल्डन रूल? कौन बताएगा गोल्डन रूल? सो यू कैन से मैम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स इन द वर्ल्ड। सो राइट डाउन एसिडिक ड्रग, बेसिक ड्रग। जो ये चार्ट बना लेगा ना मेरे साथ, वो हर क्वेश्चन सही करेगा। तुम बताओ एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन कब होगा, एक्सक्रीशन कब होगा? बताओ, हु विल टेल मी? बेसिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन कब होगा, एक्सक्रीशन कब होगा? बस लास्ट ये टेबल बता दो, लास्ट टेबल बता दो। हु विल टेल मी एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन कब होगा? एब्जॉर्प्शन के लिए सेम मीडियम चाहिए, तो एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन एसिडिक मीडियम में होगा और बेसिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन बेसिक मीडियम में होगा। ठीक है, एसिडिक ड्रग का एक्सक्रीशन बेसिक मीडियम में होगा और बेसिक ड्रग का एक्सक्रीशन एसिडिक मीडियम में होगा। एक्सक्रीशन के लिए अपोजिट मीडियम लगता है। एक और चीज यहीं पे लिख लो, वन मोर थिंग, एब्जॉर्प्शन आपका अनआयोनाइज्ड फॉर्म का होता है और एक्सक्रीशन आपका आयोनाइज्ड फॉर्म का होता है। अब क्वेश्चन कुछ भी हो, दुनिया का कुछ भी क्वेश्चन हो, यू कैन क्रैक। ट्राई करना है कुछ क्वेश्चंस? यू वांट टू ट्राई विथ मी? ओके, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। रीड द क्वेश्चन, टेल मी द आंसर। रीड द क्वेश्चन। Acetyl salicylate and phenobarbital, these both are absorbed from the stomach. Why? Tell me the reason. ये दोनों स्टमक से एब्जॉर्ब होते हैं। The author is telling you. वो एग्जामिनर नहीं बोला कि ये दोनों स्टमक से क्यों एब्जॉर्ब होते हैं, तुम रीजन बताओ। ये दोनों ड्रग्स क्यों स्टमक से क्यों एब्जॉर्ब होती हैं? ये दोनों वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक बेस है? पहले तो ये बताओ। ये दोनों वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक बेस है? पहली बात तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, पीएच डिपेंडेंट फॉर्मूला वीक के लिए है। और एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है यहां, दे आर एब्जॉर्ब नॉट एक्सक्रीटेड। एब्जॉर्प्शन सेम मीडियम में होता है, तो स्टमक में मीडियम एसिडिक है, तो एसिडिक ड्रग्स। सो ये दो ऑप्शंस वाइटल हैं, ये नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट? एसिडिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक फ्रॉम एसिडिक मीडियम। अब ये नॉन आयोनिक फॉर्म में है कि आयोनिक फॉर्म में है स्टमक के अंदर? सो एब्जॉर्प्शन किसका होता है, आयोनिक का कि नॉन आयोनिक का? तो एब्जॉर्प्शन होता है नॉन आयोनिक का, आयोनिक तो एक्सक्रीट हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ए। You got my point? It is a AIMS का क्वेश्चन है, most difficult question. Correct answer here is A, right? So, okay. मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगी, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तुम्हें आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर नहीं बताऊंगी। You have to tell me what is the answer. ठीक है? This is question number 1. Acidic drugs are ionized at which medium? Acidic drugs are ionized at which medium? You tell me. Acidic drugs का ionization कौन से मीडियम में होता है? आयोनाइजेशन मतलब एक्सक्रीशन, आयोनाइजेशन का मतलब होता है एक्सक्रीशन। तो बताओ एसिडिक ड्रग का एक्सक्रीशन कौन से मीडियम में होता है? अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे तो यू कैन रीड लाइक दिस। यू टेल मी द 4 ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। यू कैन से अल्कलाइन मीडियम यानी बेसिक मीडियम, कि एसिडिक मीडियम, की न्यूट्रल मीडियम, की नन। सो एसिडिक ड्रग्स का एक्सक्रीशन करवाना है, कौन सा मीडियम वैलिड है? A, B, C, D। राइट डाउन योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखो। एवरीवन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स राइट नाउ। बताओ, मैं बाद में बताऊंगी आंसर, पहले तुम ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 अबाउट एसिडिक मीडियम, व्हाट इज द ट्रू स्टेटमेंट? इन चारों में से क्या ट्रू है एसिडिक ड्रग के लिए? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट एसिडिक ड्रग। सो एसिडिक ड्रग के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट इज ट्रू? इट इज बेस्ट एब्जॉर्ब्ड इन एसिडिक मीडियम, ये ट्रू है, यस और फॉल्स? बेस्ट एब्जॉर्ब्ड इन बेसिक मीडियम, नॉट एब्जॉर्ब्ड इन एसिडिक मीडियम, और बाइंड्स टू अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन। चारों में से कौन सी लाइन ट्रू है? यू टेल मी। द क्वेश्चन इज वेरी इजी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। यू टेल मी क्या आंसर है, राइट? और थर्ड और लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट एक्सक्रीशन इन द यूरिन। मैं यूरिन को अल्कलानाइज कब करूं? अल्कलानाइज यानी बेसिफाई। अल्कलानाइज का मतलब होता है बेसिफिकेशन ऑफ द यूरिन। बेसिफिकेशन ऑफ द यूरिन, यू आर बेसिफाइंग द पीएच ऑफ द यूरिन टू एक्सक्रीट विच ड्रग? यू वांट टू एक्सक्रीट वीक एसिडिक ड्रग की वीक बेसिक ड्रग की स्ट्रॉन्ग एसिडिक ड्रग की स्ट्रॉन्ग बेसिक ड्रग? कौन सी ड्रग के एक्सक्रीशन के लिए
आपको यूरिन को बेसिफाई करना पड़ेगा। कौन सी ड्रग, मैंने सिंप्लीफाई कर दिए हैं तीनों क्वेश्चन। यू टेल मी द क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है। सो ए बी सी डी, यू टेल मी व्हाट इज द आंसर। देखते हैं कौन सही है। द 3 क्वेश्चंस पर जो जिसने मुझे तीनों का सही आंसर बताया उसको पूरा चैप्टर समझ में आया, राइट। सो आई विल कंसिडर दैट। सो प्लीज राइट डाउन, प्लीज ट्राई, एटलीस्ट ट्राई ना। एट मैक्स यू विल बी रॉन्ग, उसमें क्या हो गया। एट मैक्स यू विल बी रॉन्ग ना, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, उसमें क्या हो गया, right? So okay, so if you have any doubt, I will answer I will give you the answer in the comment only, ठीक है। So please write down in the comment box, I will answer you give you the correct answer in the comment box only. If you have any doubt regarding this session or any session of Patho Pharma Micro, you are free to ask me the doubts on this contact number. It's 9833032948. You can connect me on WhatsApp or Telegram, right? And please share this number with all your batchmates so they can also connect with me and they can ask your doubts directly to me, and share the link on your batch groups and all the medicos you know in your contact. So before leaving, as usual, we are having a small motivational quote with us. For studies, motivation is always required, and I always motivate my students, ठीक है। You imagine one day, one emergency call at 3 a.m. in the night, 3 a.m. in the night, one emergency call, you will wake up, right? You will wake up in that emergency call, right? No matter how tired you are, no matter how tired you are, one patient and you will be there. Even one patient in your clinic, in your OPD, in your hospital, in your workplace, you are tired, but you will be there. You will always leave your coffee cup behind. You will not say, no, let me finish my coffee, then I will see the patient. No, you will always leave your coffee cup behind and pause your favorite TV shows, because you are going to serve humanity one day. One day you are going to become a doctor. One day. So believe in that day. Imagine that day. You can't wait for that day. Ma'am, this day when it will come. I'm waiting eagerly for this day. So this should be your dream कि मैम one day I will live this life. इसमें अपना मजा है। रात को 3 बजे उठ के जाकर इमरजेंसी भी करना, ये भी एक अपना मजा है। You are serving the humanity. You are doctor. You are the doctor, right? You are the life saver, or you can say life giver. Yes, so वो दिन के लिए आपको you have to do the hard work. You have to live your dream every day. ये ड्रीम देखो, close your eyes और मेरे साथ ये ड्रीम्स देखा करो। जब मैं एक मोटिवेशनल कोट बताती हूँ ना, मैं हमेशा एक स्टोरी कोट करती हूँ। So always close your eyes and dream that moment. Just live that moment, I can say. Live that moment. वो सेकेंड, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में तुम सच में उस फेज में जाके उसको जी के आओ। वो मोमेंट जो तुम्हें अंदर से खुशी मिलेगी ना उस मोमेंट से कि हाँ यार ये करने में बड़ा मजा आएगा। कब होगा वो दिन, कब आएगा, उससे तुम्हें ना डेडिकेशन मिलेगा कि मुझे उसके लिए हार्ड वर्क करना है। ऐसे नहीं पहुंच जाएंगे वहां तक, उसके लिए पढ़ना है, खूब पढ़ना है, मजे से पढ़ना है, हार्ड वर्क के साथ साथ करना है स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ साथ करना है स्मार्ट वर्क, ठीक है। So thank you very much for being with me. If you like the lecture, don't forget to click on the like button, share with your batch groups. Please अपने batch groups पे मेरे lectures share कीजिए. The lectures are free. It can be useful to your friends, colleagues, everyone, right? And subscribe our YouTube channel and press the bell icon for getting further notifications. Bye bye. Study hard. All the best.